friends, हम लोग चालू करने की संभावना है। This little press meet and interaction is organized by friends of the people of Chhattisgarh. We have a solidarity group of activists, lawyers, supporters, friends who have been following up on the Chhattisgarh issues since 2007 when Dr. Vinayak Sen was arrested. Since then, this group has continued to support and follow closely the human rights violations, the attack on the Adivasis, on the journalists and others. There's a lot that's happening, and if one thought that things were bad in 2007, 8, 9, they are much worse now. So today is a rare occasion when we have Soni Sori with us. Soni Sori, as you probably know, was a school teacher who was picked up and arrested in October 2011 on the charges of being a Maoist supporter or sympathizer. She was in jail for over 2 years. She was tortured, she was assaulted, and all that didn't break her, but she came back a much stronger woman. And today she's considered to be one of the foremost tribal activists, if not leaders, in Bastar. So we should really listen to her story. Before that, however, we will have Dr. Elina Sen, the wife of Dr. Vinayak Sen incidentally, but in her own right, a scholar from JNU. She's professor of women's studies at TISS. She's also authored a wonderful book called Inside Chhattisgarh, which I recommend that you all read. We had a release of that in February last year. So I would request Dr. Elina Sen to start by giving a brief background about the current status in Chhattisgarh. और उसके बाद सोनी जी आपके बारे में बात करेंगे और जो हो रहा है ज़्यादा करके जो 2 साल से जब हुआ है जब आप जेल के बाहर आए हैं उसके बारे में आप थोड़ा बातचीत कीजिए, बताइए इनको कि असल में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी असॉल्ट तो आदिवासी पे हुआ है और उसके साथ जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, जो भी उनके लॉयर्स हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, 4 पत्रकारों को जेल में डाला गया। बाकी ऐसे जो हो रहा है ये सब चीज़ें आप जरा बताइए। तो एलिना जी आप आइए प्लीज़। सॉरी जी आप भी आइए प्लीज़। Good afternoon. I really think that all of us have come to listen to Soni, so I will not take a lot of time. And today what is happening in Bastar is really serious. Bastar has become a battle zone, and for the first time I think in the last couple of months some attention of the media and of solidarity networks elsewhere in the country and even beyond has been focused on Bastar a very little bit. But I think we need to know and understand and try and protect Bastar much more than any of us have been able to do so far. And Bastar also, to understand what is happening in Bastar today, we must look at the larger context of the state of Chhattisgarh, and that's where that's what I would like to share with you. Chhattisgarh, as we know, was constituted into a new state out of old Madhya Pradesh in 2000. So it's exactly 16 years old. But right from the beginning, it was very clear that Chhattisgarh, I mean, up to that point, it was a very remote part of Madhya Pradesh. And I remember earlier when I used to travel out of Chhattisgarh,
लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था कि छत्तीसगढ़ है कहाँ, रायपुर कहाँ है। तो अलग अलग जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तब मुझे ये लोगों को बोलना पड़ा, जैसे लोगों को इन द सेंस कि देश के बाहर भी और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, कि रायपुर कहाँ है, वो भोपाल के पास है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी से लोग परिचित थे। और ये विडंबना है कि बिकॉज ऑफ द गैस ट्रेजेडी भोपाल हैड गेन्ड सम नोटोराइटी एंड एक पहचान बनी थी। सो वी आइडेंटिफाइड रायपुर फॉर द जनरल पब्लिक लाइक दैट। But 2000 onwards, there was this, well orchestrated and very well planned design to integrate the new state with the neoliberalized economy. And Chhattisgarh is enormously rich. Or I remember on our Founders' Day, which was the 1st of November 2000, when the state was created, the first chief minister, he made 2 statements, and both of those statements were prophetic. One was that छत्तीसगढ़ के लोग एक साथ कई जिंदगी जीते हैं. They live in a modern world and they also live in a very, very old world. People live in many centuries at the same time. And that is absolutely true, because we have people who are absolutely Adivasi populations, pockets that are isolated into the forest, tucked away in the forest, who have never seen things like trains, who have very little contact with, within quotes, so-called civilization. We have communities like that. And of course, we have massive temples of modern India, like the Bhilai steel plant sitting in Bhilai. So that was one statement he made. And the other statement that Ajit Jogi made at that time was that Chhattisgarh is the richest land in the country, but its people are the poorest. And that again is also true, because the resources of Chhattisgarh, जो खनिज संपदा हमारे हैं, वो पूरे देश में सबसे अधिक हैं. We have huge resources of minerals under the soil, very important major forest resources, and it's precisely these resources that have been the, what shall I say, the Apshakun, the evil omen that has driven all these hordes of finance capital into Chhattisgarh. And since 2000-2001, there has been this attempt to open up these resources, and because this was in the context of liberalization of the economy, to give contracts and sign MOUs with different companies for extraction, for prospecting licenses, and all the major industrial giants that you can think of, they are all there in Chhattisgarh somewhere or the other. We have Rio Tinto, we have Tata, they all hold large prospecting licenses. And ever since this time of opening up of the state began, the tragedy that is there in our midst, the tragedy that the people of Chhattisgarh, particularly the people of Bastar, which is the richest district of Chhattisgarh, face, that has begun. I mean, these two have been coterminous. So as the mineral license was given out, and as the prospecting and as the MOUs began to be signed, and corporate interests began to descend on the area, people wanted to get, people, when I say people, not the people of the land, but the people who wanted to come and open up the economy, they wanted to have access, uninterrupted, uninhibited access to these resources. There was, of course, resistance from the Adivasi communities, because people did not want the lives that they had lived for so many years to be disrupted. They wanted to, they were happy, they had very little material wealth, very little cash resources, but they had plenty because the forest gave them a lot, and what little they were able to cultivate on the soil, that was enough for them. Their needs were few and they had enough. But all this changed because the land had to be got hold of, and throughout the the first decade of this century, we saw a whole lot of takeovers, land sequestration, sometimes by fraud, and for fraud, forgery by several means. I remember when at Dhurli, the SR steel plant was trying to build a pipeline from Bailadila to Jagdalpur to Visakhapatnam to transport the slurry, the iron mining slurry, to Japan. And in the process, they wanted to acquire land in Dhurli village. Now, Dhurli village had a Gram Sabha
which was actually a mockery of a Gram Sabha. This is an area under the 5th schedule of the Constitution where tribal communities enjoy a special protection. No development activity can take place there without the consent of the people. And people expectedly, on 3 occasions, they said, no, we do not want to give our land to the company. Then what happened was that the administration of the district, I'm sure behind them the administration of the state, the police and the company officials, they got together and a law and order situation was declared, and section 144, which prohibits the assembly of more than a very few people, that was imposed on the village. So obviously a Gram Sabha could not take place under those conditions. Yet, while section 144 was in progress, the administration, the company representatives sat in a little Panchayat Bhavan in the village and individually went to every home and took the thumbprints of all the people, the adults in those homes, and declared that a Gram Sabha had taken place. They wrote the minutes themselves. Gram Sabha had taken place and they had given their consent to land acquisition. This kind of situation was repeated on many occasions, and there is also a problem of left insurgency, a Maoist presence which has been there for something like 40 years. The original Maoists, I believe, came from Andhra Pradesh into Chhattisgarh when they were facing the heat in Adilabad, Karimnagar and some of the districts of North Telangana. They moved into Bastar, but their own, they lived in the forest, where the tribals lived, and they had small squads. And there was a film made some time ago by C. Vanaja, which showed that they had some developmental activity in those villages where they were. There were occasional skirmishes with the state security forces, but at that point the state did not seriously care about getting hold of those lands. But suddenly those lands were very precious, and it was very important for the government of the state to get control of the lands back into their hands so that the lands could be nicely gift wrapped and handed over to the corporates. So with this scenario, this whole agenda of getting rid of the Maoists began to gather huge proportions in Chhattisgarh. Major investment by the center and by the state was made into security, into beefing up the security forces, training them in jungle warfare. A jungle warfare school was opened, and different kinds of paramilitary forces began to descend on Bastar. This was all through 2005, 6, 2007, 8. And because it's difficult for people who come from outside, from the BSF, which comes from, Sikh soldiers who come, it's difficult for them to distinguish who is a Maoist and who is just an ordinary villager. Because even the Maoist cadres are made up of Adivasis. So since it's difficult for them, gradually a kind of truism began to be held by the security establishment that any Adivasi is a Naxalite. So with this kind of wisdom, when they went in, they would arrest any person on suspicion of being a Maoist and take them into custody, men, women. Women, of course, bore this additional brunt that they were sexually assaulted, they were raped, gang raped on many occasions, and that traditionally has been for any invading army, any controlling army, anywhere in the world, any period in history, a tool of area domination. So that was used against women. So all this mayhem went on. 2005-06, an additional initiative called the Sarva Jurum was launched, which was supposed to be declared to be a people's movement for getting rid of the Maoists, but effectively it was a vigilante force which emptied villages out, burnt crops, burnt homes, corralled people into relief camps. Many people just ran away into the forest. Those who ran away were assumed to have joined the Maoists. So this kind of thing went on until the Supreme Court declared the Salva Jurum illegal. It was disbanded. But today we see that the vigilantes have taken a new life, acquired a new life under many other names like Vikas Sangharsh Samiti, Samajik Ekta Manch, Mahila Ekta Manch. So there are several avatars. And occasionally when one particular formation faces flak, then they kind of disband it and then they reappear again under some other avatar.
in recent times, Soni will tell you much more about the recent history. And of course, the tragedy that all of us who have lived in Chhattisgarh, who have lived, I'm not a tribal myself, but I have lived there and lived in very close proximity and in sisterhood with tribal communities. But what we have felt always is that the way of life, even just now I was talking to Sori, and some of our festivals, there is no way of celebrating these again, because there is a seed festival that takes place in Chhattisgarh, and there is this village called Sarkiguda where a seed meeting was taking place. This happens before the crops are sown. People bring out their seeds and they exchange them. They discuss, different kinds of seed and which is a good seed for which kind of land, etc., etc. So it's a village meeting about agriculture. But in Sarkiguda, when a beach Pandung meeting was taking place, the security forces descended on the village and they assumed that this was an Naxalite meeting, and they began firing and they killed several people there, raped several women. And this, the cases are all sub judice. There are thousands and thousands and thousands of cases, thousands and thousands and thousands of prisoners who are languishing in jail, all of them charged with sedition, charged with atrocities under Arms Act, criminal conspiracy, etc., etc. And all of this is part of the way that our country deals with what Manmohan Singh called the largest threat to national security. So this is what has been going on, and in the last year I think the situation has once again come to a boil. 2006-07 were bad years in which many human rights activists were imprisoned, and a series of trials, Nandini Sundar's case in the Supreme Court. So that was one period when a lot was happening, and that I think is when this Bombay network for the support of Chhattisgarh came into place. And this year, 2015 onwards, 15-16, has been another such year in which several journalists have been arrested. Santosh Yadav, Sumaru Nag, Deepak Jaiswal, Prabhat Singh have been arrested because they tried to publish independent reports of what was happening in Bastar and did not just rely on government handouts. So this is an attack on the press, which I am sure the press in Bombay will also feel strongly about. There was Malini, who was writing about what was going on in Bastar, about several fake encounters that were reported, and Tom, there's successes of the police force. Malini wrote on an online platform, Scroll.in. Malini, the police did nothing to her, they could not, but she was attacked by the Samajik Ekta Manch. That was when they first came into prominence. Later, the Samajik Ekta Manch was instrumental in getting the Jagdalpur Legal Aid Group, which was a group of lawyers that were providing legal aid to Adivasis who were being treated as Naxalites who were not Naxalites, but who were just put under this label of being Maoist cadres, Maoist sympathizers, part of the urban network, and they were in jails, providing legal aid to them. They were forced to leave Bastar and move elsewhere. So that was when the Samajik Ekta Manch came into prominence, and a couple of days ago there was this report saying that they have disbanded themselves. So they have disbanded themselves, but they will, I'm sure in a couple of days they will emerge again under some other name. Mahila Ekta Manch, Bela Bhatia, who earlier worked with us, who was our colleague in TISS. Bela Bhatia, because her research, her PhD and subsequent research was on people's movements and how people's movements originate and how they consolidate, how they solidify. She went to Bastar to try and work on these issues, try and understand what was happening on the ground. And she has been targeted. She's married. Her partner is Jean Drèze, who is this very renowned economist, associate of Amartya Sen. So Bela and John have both been labeled urban Naxalites, Naxalite sympathizers, and the Mahila Ekta Manch is the organization that has been orchestrating the protest against Bela's presence in Bastar, asking her to leave, burning her effigy. So this kind of mayhem, this kind of complete chaos has been going on in Bastar, and the media is forced into silence. This is the situation under which we are operating, and I'm sure I've just given an overview. I'm sure Soni will talk much more and with much more passion, because she has been living there, she has been struggling there, she herself has faced atrocities, her family have been targeted, she lost her husband. When she was in prison, he was in prison too. He died, she was unable to go to his funeral. So she has personally borne the brunt,
and she will tell you much more about her experiences. The only thing that I can add is that we want all of you to write on Bastar, to understand what is happening there, and to keep Bastar in your hearts. Thank you. मैं एक छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला जो सरकार की सताए जा रही हूँ, सता रहे हैं, मुझ पे जो यातनाएं दे हैं, तो मैं ऐसी एक आदिवासी महिला हूँ। आपके समक्ष रख के मैं कुछ अपने ही चेहरे के पीछे जो बस्तर में जो हो रहा है अत्याचार, जिस तरह जुल्म हो रहा है, तो मैं ये अच्छी बात है, मैं आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हूँ। और मेरा शिक्षित होना और मेरी होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी लगता है कि दुख की बात है। और मेरी शिक्षा कहती है कि जहाँ पर अगर अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ, और उस आवाज़ को उठाने से इस तरह से जो सरकार हम पे सता रही, कभी करंट छोड़ देना, कभी निवस्त्र करना, या फिर मेरे गुप्तांगों में पत्रे डालना, तो जिस तरह चेहरे का ऊपर अटैक करना, ये कोई समाज या कोई परिवार या वो लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो ये सरकार जो ये कर रही है, ये कितनी मतलब एक बुद्धिल और कितनी बड़ी बात है। कल तक हम समाज के उस पर लड़ते थे कि समाज ऐसा कर रही है, समाज वो कर, लेकिन आज सरकार ऐसा कर रही है। और ये कर क्यों रही है? क्योंकि जिन महिलाओं के साथ वहाँ हो रहा है बस्तर में नक्सल के नाम पे, और ये लड़ाई तो वास्तविकता नक्सल समस्या या नक्सलवादी के साथ नहीं है, ये तो सिर्फ आदिवासियों को खत्म करने की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ की आदिवासी को जल जंगल जमीन से हटाने की लड़ाई है। अगर हम तो एक आदिवासी हैं, हमारा गांव है, हमारा परिवार है, हम बस्तर में पैदा हुए हैं, फिर हमको नक्सलाइट या देशद्रोही के द्वारा बना के जेल में डाल के इस तरह यत्न क्यों दिया जाता है? और अभी जैसे बलम नेंड्रा, पेद्दा गेलू, पेद्दा पारा, ऐसे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिसके बारे में हम गाँव में गए, बोले कि ये सब हो रहा है, जबकि उसका FIR भी हुआ, और उसका FIR होने के बाद SP से कलेक्टर हर तरह की लड़ाई लड़े, आज भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। वो महिलाओं के साथ जो बच्ची गाय चराने जाती है उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, वो भी कौन करते हैं? पुलिस बल, पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार के बनाए हुए ये जो पुलिस विभाग, वो इतना ताकत उनको कहाँ से आती है? और महिलाएं अपने बच्चों के साथ सोते हैं तो उन बच्चों को फेंक के बलात्कार किया जाता है, और जो आदिवासी भाई लोग हैं उनको जबरदस्ती पर भी सरेंडर किया जाता है। और आप सबके सामने या देश के हर जगह पेपरों में तो ये लिख दिया जाता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार इतना कामयाब हो रही है, ये इतना सरेंडर दिखा रहा है, इतना एनकाउंटर तो जेल, वो पूरे का पूरा तो आधा ज्यादा आदिवासी रहता है। उस सच्चाई तक कौन जाता है? उस सच्चाई तक कौन पूछता है? अगर उस सच्चाई तक जाते पता चलेगा कि वो पूरे आदिवासी रहते हैं, कभी 100, 200 थे। अगर इतने साल से, अभी 2 साल के अंतराल में कितने सरेंडर दिखाया, कितने एनकाउंटर दिखाया और कितने को जेल, तब तक तो माओवादी का तो समाप्त होना चाहिए। फिर ये क्यों वहाँ पर आए दिन फिर माओवादी का भी इस तरह से कुछ घटना के अंजाम क्यों देते हैं? तो ये एक सरकार ये सिर्फ आदिवासियों को मारने के लिए, आदिवासी को बेदखल करने के लिए ही एक लड़ाई है। और आदिवासी कहाँ जाए? इस लड़ाई के चलते हम आदिवासियों की पूरी संस्कृति नष्ट हो रही। आज हम जंगल नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल की जाए बिना हम आदिवासी का जीवन मतलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंगल से कई चीजें मिलती है हमको, कई ऐसा वनोपज मिलता है, कई मूलखंड मिलता है। वहाँ जाते हैं तो एनकाउंटर करके नक्सलाइट घोषित किया जाता है, महिला जाएगी तो बलात्कार किया जाता है। ना हम खेती कर सकते हैं, ना जंगल जा सकते हैं, ना घर में सो सकते हैं। हम घर में अगर रात में सोए तो रात को पुलिस आ जाती है और पुरुषों को उठा के ले जाएगी, कोई जंगल में मार देगी और ये दिखा देगी कि नहीं हमने मतलब यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया और ये नक्सलाइट है, और महिला के साथ बलात्कार होना। तो ये बताइए, ये एक आज़ादी देश की बात करते हैं, तो ये हम आज़ाद है कहाँ? किस तरह से हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं कि हम अपने घर में नहीं सो सकते, जिस जंगल को हम अपना जीवन यापन बोलते हैं उसमें नहीं रह सकते। अभी जैसे जो मुझ पे जो अटैक हुआ, वो कोई बड़ा इतनी बड़ी सवाल नहीं थी, वो एक मासूम में 7 बच्चे का पिता था, उसको पुलिस उठा ली। तो उनकी जो महिला थी मुझे फोन किया कि आप हमारी मदद के लिए आइए। मैं जब वहाँ गई तो मुझे देखने को मिला कि उसकी डेड बॉडी सब रखा हुआ था। तो वहाँ पहले तो ये पेपर में दिया गया, पुलिस वाले बोले कि नहीं, माडून के जंगल में एक बहुत बड़ा मतलब नक्सलाइट वर्दीदारी को मार दिया जिसमें 1 लाख का इनाम था।
तो हम भी सोचे शायद हो सकता है। फिर जब वहाँ जाके देखने को पता चला वो 7 बच्चे का पिता, और ऐसा कोई उनके पास वो चीज ना मतलब नहीं होने का ऐसा दावा नहीं कर, वोटर आईडी कार्ड था, राशन कार्ड था जो सरकार ने इंदिरा आवास देती है, और एक खेती किसान क्रेडिट कार्ड, इतना तक उस व्यक्ति के पास था। तो फिर वो नक्सलवादी और वर्दीदारी कैसे हो सकता? फिर 7 बच्चे, घर, सब। तो उसको हमने आके सीधा आज रायपुर में आए, रायपुर में हम डीजीपी से सवाल किया कि सर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि ये पूरा डॉक्यूमेंट्स देती हूँ, ये 7 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये माओवादी कैसे हुआ? आप मुझे सबूत दीजिए, क्योंकि आपका प्रशासन ने 1 लाख का इनामी नक्सलाइट बताया। तो 1 लाख का इनामी नक्सलाइट कौन से सन में घोषित किया गया? ये सवाल का जवाब, मतलब मैं इस सवाल का जवाब मतलब प्रश्न करने बाद उसका मैं इंतजार कर रही थी कि शायद मेरे को कुछ दिन के बाद डीजीपी ने मेरे सवालों का जवाब देगा, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? मेरे चेहरे पे इस तरह अटैक कर दिया गया और ये बोला गया कि दोबारा आप मालूम के मुद्दे को मत उठाना और करना भी नहीं। इस तरह से बात है, ये मिलता है हमको। हम क्या हमारे हक की बात करें, अगर हम इस तरह अत्याचार हो रहा है, जो पुलिस ने जो दमन कर रही है वहाँ इस तरह कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या बोलना गुनाह? ये कहाँ है लोकतंत्र? बताए। जो लोकतंत्र में रहने वाले, संविधान में रहने वाले, संविधान के तहत लड़ने वाले, वो ये दावा करते हैं कि हम संविधान के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं। फिर इस तरह की हिंसात्मक लड़ाई क्यों? अगर नक्सल से उनकी लड़ाई है तो नक्सल से हुआ है तो वो पूरी सबूत के साथ पेश करे। बार बार आदिवासी भोले भाले सीधे साधे होने के नाते ये सब किया जाए। अब तो और भी ज्यादा। अब बताइए, पत्रकार तो एक स्वतंत्र है, वो किसी की भी लिख सकता है, चाहे माओवादी का हो चाहे आदिवासी का हो, किसी भी, उसको भी दे दो, उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है। तो आज पत्रकार लोगों की स्थिति है, तो आम व्यक्ति का छत्तीसगढ़ सरकार में क्या स्थिति हो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लीगल ग्रुप है, वो एक आदिवासियों के उस जगह पे काम कर रहे थे जो जितने सालों से जेलों में बंद है, उनके पास पैसे कहाँ है आदिवासी पर? वो क्या बेच के वो अपने लोगों को छुड़वाएं? तो ये एक निःशुल्क से वो अपना सेवा दे रहे थे, उनको हटा दिया गया। मालिनी सुब्रमण्य एक महिला होने के नाते वो मेरे साथ भी कई जगह पे इस तरह से अपने आप को जान का जोखिम डाल के गए, उन्होंने लिखने का उनका ये सजा। प्रभात की जो बात है उसको बताती हूँ। प्रभात ने कोई वो नहीं कि अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं लड़ा था प्रभात, और उसने तो एक आदिवासी को, जबकि आईजी ने कहा था कि माओवादी ने एक पांडु नाम का लड़का को दोनों आंख निकाल दिया गया। तो मैं जब ये पता चला, मैं बोली इतना माओवादी वो कर रहे हैं कि उनकी आंखों को निकाला। जब हमने जाकर देखा तो पांडु बोलता नहीं मैडम मेरा कोई आंख नहीं, ये देखो मेरा आंख है। तब मैं प्रभात सिंह को बताई, प्रभात ने बोला जब तक ये चीज को मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं लिखूं। प्रभात मेरे साथ गया, वो बहुत अंदर एरिया पड़ता, फिर भी बेचारा सुबह से शाम तक उसका स्टोरी किया, वीडियो लिया, उसकी पूरा इंटरव्यू लिया, और वो पांडु बताता है मेरे दोनों आप देखिए सर मेरे ठीक ठाक है। इस तरह से एक मतलब फर्जी और ये कलूरी जो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 हफ्ता हीरो बना हुआ था, उसकी ना प्रभात सिंह ने लिख के उसकी पूरी सरमसर कर दिया। वो बदला था कलूरी जो, अब उसकी वजह से इतने लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं फंसा के अब जेल में डाल दिया। पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक, आम जनता, हम जैसे आदिवासी लोग वहाँ कहाँ सुरक्षित? फिर भी इस लड़ाई को जब हम जेल गए तो हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, क्या नहीं किए। अब जेल से बाहर आए, आज हमारे पास नौकरी नहीं, हम तो अच्छी खासी टीचर में थे, हम तो अपने जीवन जी रहे थे, मेरे पति थे, मेरे बच्चे थे, मैं तो बहुत खुश थी वो जीवन में। लेकिन इस तरह से मेरे को आज लाया किसने? सरकार ने लाया। और आज अगर सरकार मुझसे कहती है कि आप अब चुप रहो, शांत बैठो, तो मैं क्या बैठूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना घर है ना नौकरी है, मेरे 3 बच्चे हैं जो इतनी परेशानियों का संघर्ष करते जी रहे हैं। मेरे पति को भी इस लड़ाई में उनको भी मतलब इस दुनिया जाना पड़ा, मेरी माता जी गुजर गई। ये सब तमाम अत्याचार होने के बाद क्या मैं कमजोर बन सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अब तो मेरा लड़ना ही मेरी जिंदगी है, लड़ना ही मेरा मकसद है। अब जब ये इस तरह से मेरे आंखों के सामने होगा हम तो लड़ते रहेंगे, हमने चुप नहीं बैठे। कभी तो करंट शॉट, कभी अटैक, मतलब इस शरीर को कितनी जख्म दिए। ये तो शुक्र है कि ये शरीर फिर भी मुझे खुद को ये होता है कि कितना इस शरीर को मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये है, अब जब तक हमारी मतलब एक कहना चाहिए जिंदगी रहेगी और हमारी जान रहेगी तब तक लड़ते रहे, क्योंकि हम अपनों के साथ अत्याचार होते नहीं देख सकते। मैंने जेल में देखा, जेल में कई लड़कियों के तन को काट दिया गया, उसके निप्पल को काट दिया गया, करंट शॉट दिया गया, तो थाने में बलात्कार हुआ, बच्चे को अस्पताल क्या जेल में जन्म दिया गया। अब बताइए 16 साल की जो हिड़में है वो मेला देखने गई थी, 16 साल की हिड़में मेला देखने गई थी, वहाँ पुलिस उठा के 15 दिन रखा।
उसके बाद उसके साथ इतना जाति किया कि आज उसको बच्चादानी निकालना पड़ा, 12 टाके लगाने पड़े। आज वो लड़की मेरे साथ है और निकली तो कितने साल बाद, 8 साल बाद। आप बताइए 16 साल की लड़की 8 साल बाद निकली, वो भी बाइज्जत रिहा हो। अब बताइए इसकी जिंदगी का क्या, सरकार क्या इसके साथ जो हुआ वो क्या कर सकती है सरकार? अगर उसके लिए हम लड़ना चाहेंगे तो हम पर अटैक करना, इस तरह यातनाएं देना, ये कहाँ तक सही? कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है, तो सरकार क्यों नहीं सोचती? आप बताए बेलम मेंढरा में पुलिस वाले ने बलात्कार किया, आज तक उनके ऊपर कोई, अगर उसे आज एक समाज का आम नागरिक किसी लड़की का या किसी का चुन्नी खींच ले, आप पकड़ ले, वही जब जाए कि शिकायत में तुरंत अरेस्ट है। लेकिन पुलिस के लिए इतना अधिकार, इतना ये सरकार क्यों छोड़ दे रखी? वो कुछ भी कर सकता है। तो आज क्या बात हो रही है कि अगर आज हमको अरेस्ट है, हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे साथ सरकार है, हम तो अब फिर आएंगे फिर बलात्कार करके जाएंगे। देख रहे हो अब 3 महीने से लड़ रहे हो, हमको तो कोई अरेस्ट नहीं है। भाई सरकार हमारे साथ, तुम्हारे साथ नहीं है, ये कहा जाता है। इस तरह से आज मतलब सरकार का है। अब देशद्रोही, जब हमें सच्चाई का आवाज, हम ही देशद्रोही, तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो उस देशद्रोही की तरह है, वो भी तो वही कर रही है। लेकिन अब सरकार के साथ लड़ने का सजा इतना कुछ होता है। अब बताइए, अब आगे हम नहीं लड़े तो चुप कैसे रहे? चुप रहेंगे तो क्यों चुप रहे? मेरा परिवार, अब हाँ, तो मेरे पिता को तो नक्सल ने गोली मारी, मतलब मेरे जो पिता हैं उनको नक्सल ने गोली मारी। एक तरफ सरकार मुझे नक्सलाइट बोलती, दूसरी तरफ मेरे पिता को टांग में नक्सलाइट। जिस नक्सलाइट ने गोली मारी, सरकार उसके साथ पता है क्या किया? उसने सरेंडर कर ली। मेरे पिता बार बार थाने में जाके कहते हैं कि वो बद्रू नाम का व्यक्ति मुझे गोली मारा है, उसको आप अंदर कीजिए। लेकिन नहीं, बद्रू आज बंगला मिला है, नौकरी मिली है, और जिस एरिया में वो काम किया उसी एरिया में बंदूक देके फिर से भेजा गया। 4 एनकाउंटर किया, 4 महीना मतलब 8 एनकाउंटर किया, उसको इतनी बरमार पैसे मिली, आज बड़ी गाड़ी में घूमता। तो क्या ये मुख्य धारा में आने का कैसा? अगर एक नक्सलाइट जंगल में रह के बंदूक लेके काम कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, तो उसको फिर सरकार फिर दोबारा बंदूक दे के उसी हिंसा के प्रति वो करके और उसको ये शाबाशी दे रहा है, कितने को तुमने मारा ना? मैं 8 जन को, ले बेटा इतने पैसे रखो। ये आज बंदूक के पास क्या नहीं। और मेरे पिताजी के ऊपर हमला हुआ, गाँव वाले को उठा के लाते हैं। मेरे पिता कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब इनको क्यों बार बार उठा के लाते हो, क्यों इनको जेल में डाल रखा? मेरे को जो गोली मारने वाला तो बद्रू है, जो कॉलोनी में रहता है, उनको आप अरेस्ट कीजिए। मैं कितने बार एक विकलांग आदमी आके मैं बयान दूंगा, तो मजिस्ट्रेट क्या बोलते हैं, नहीं आप लोग एक आंदोलन कीजिए और उसको अंदर डालिए। बता मजिस्ट्रेट का ये कहावत है। तो इस स्थिति में हम कैसे लड़ें, क्या करें? आज मेरे परिवार के पास होने, आज बताइए परिवार एक तरह नक्सल का भी शिकार होता है, मैं एक सरकार की शिकार। आज भी मुझे कहा जाता है नक्सलाइट है, नक्सल, पर मैं उन आदिवासियों को नहीं लड़ती। और मैं तो बंदूक की लड़ाई से हमेशा विरोध है। मैं ये कलम की लड़ाई लड़ती हूँ और सिस्टम की लड़ने की दावा करती हूँ। मुझे पता है इसमें मेरे को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियों का सामना, पर मेरी लड़ाई वही है। आज मेरे परिवार पूरा भटक गया, मेरे तीनों भाई सब मतलब बाप को साथ नहीं दे रहे हैं, डर से सब अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। किस तरह हमारे परिवार के लिए हो गए? आज मेरे ससुराल है तो मेरे ससुराल को डरा के मुझसे अलग कर दिया गया। माने क्या नहीं हमारे साथ भी हो रहा है। अभी देखो, जब मैं आ रही थी 19 तारीख को, वो शादी आए थे आदिवासी, बहुत बड़ी शादी थी और एक मतलब सीपीआई लीडर के बेटे की, तो वहाँ शादी में आए थे लोग नाचने के लिए। क्या उनका हक नहीं है शादी में आने? शादी से जा रहे थे, गाड़ी से उठा के पुलिस ने पकड़ लिया। तो मुझे फोन आया मेरे को इधर आने का, मेरा वैसे भी बहुत इच्छा थी बॉम्बे आने का। तो मैंने फिर रायपुर पहुंची थी, तो मैं बोली अब वापस जाऊं या बॉम्बे जाऊं। फिर मैं इधर आगे बढ़ गई, लेकिन आज वो बेचारे जेल गए। कल पता चला मुझे को 7 लोग, 2 महिला बाकी पुरुष, वो लड़के जेल पहुंच गए, जेल चले गए। अब वो शादी आके नाच के जाने वाले उसको पुलिस पकड़ के ये शो कर दी कि बहुत बड़े कमांडर नक्सलाइट है और उनको जेल में डाल दिया। हम ना शादी कर सकते हैं मतलब लोगों की इस पे, ना कोई हमारी संस्कृति का त्योहार मना सकते हैं। जब सरके गुड़ा में एक बीच पंडों में मार दिया गया, तो हमारी पूरी आदिवासी कल्चर भी तो नष्ट हो रही है, पुरुष को भी समाप्त करें। तो कुल मिला के हमको क्या लगेगा, क्या कैसे हम मान ले कि ये लड़ाई एक माओवादी के साथ नहीं, ये लड़ाई आदिवासी के साथ है, ये लड़ाई आदिवासी के जल जंगल जमीन के साथ। और हमको तो स्पष्ट और कलूरी आईजी स्पष्ट बोला आदिवासी को मरना पड़ेगा, आदिवासी को मरना होगा। पहले तो उसने बोला आप लड़ाई छोड़ो, मैंने कहा मैं लड़ाई क्यों छोड़ूं, आप लोग मारना बंद करो आदिवासियों को तो मैं लड़ाई छोड़ दूंगी। तब उन्होंने बोला नहीं आदिवासी तो मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? आदिवासी की कोई अस्तित्व नहीं। क्यों जमीन नहीं देते हैं? सरकार को आदिवासी की जमीन चाहिए, क्योंकि पैसा कानून के तहत
टाइप मतलब ऐसा एक्ट बनाए जिससे सरकार ले ही नहीं सकती है कि जमीन भी हमारे आदिवासियों को नहीं ले सकती। इसलिए उनको पता है सरकार को कि हम ये नहीं ले सकते, तो आदिवासी को मारना जरूरी है। किसी तरह से आदिवासी को मारना होगा, तब वहाँ के जंगलों से आदिवासी खाली करेंगे, तो जंगले खाली होगा, जमीन खाली होगा, तो अपनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जमीन दिया जाए। ऐसा भी क्या विकास, हम विकास की विरोध नहीं है, हम विकास चाहते हैं, पर ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हिंसात्मक करके उसका विकास दिखाए। तो हम लोग कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, हम तो वहाँ पर पैदाइश है, हमारे आदिवासी कहाँ जाए। ये मतलब इस लड़ाई में हमने क्या नहीं किया। मेरे पति को इतना तड़पा के मारा गया, वो इस दुनिया से चले गए, आज मुझे विधवा बना दिए। और जो कलूरी ने मेरे पति को ले जाके आज मूर्ति काट हुआ, वही व्यक्ति आज वहाँ SP IG बन के गया, और वही मुझ पर इस तरह से आज हरकतें करता है। और मुझे क्या नहीं बोला, बाजारू महिला बोले। क्या मैं एक आदिवासी की आवाज उठाती, उन महिलाओं के साथ अत्याचार उठाती हूँ, क्या मैं बाजारू हूँ? तो वो ये तक बोलते हैं, वो एक बाजारू, मीडिया के सामने बोलते बाजारू महिला। कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। जब मैं बॉम्बे आके चले जाती हूँ या फिर दिल्ली आके जाऊँ, कहीं ऐसे बुलाते हैं कुछ, तो वहाँ आके जाती हूँ तो क्या बोलते हैं, कल ये तो रंडीबाजी करने जाती है, इसको तो पैसे चाहिए, वहाँ ये करने जाती। इस तरह का मुझ पे आरोप लगता है, इस तरह से बोलते हैं। क्या इससे हमको फर्क नहीं पड़ता? पर ये बताइए, एक महिला को क्या नहीं, एक अधिकारी या वहाँ की सरकार क्या नहीं कही? इस तरह से हम वहाँ पर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आप सबसे यही है कि जो पत्रकार भाई हैं और अभी जो मीडिया भाई लोग आए हुए हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि जो 4 लोग अंदर है, उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि उनको भी आज़ाद करने की बहुत जरूरत। अगर आज हमारे मीडिया भाई अंदर आज चले जाए, उनको पर इतना दबाव हुआ, तो फिर हमारा तो और खत्म हो जाएगा। हमारे कौन लिखेगा, कौन उजागर करेगा? हमको तो वहाँ पर मतलब मार के कहीं वो कर भी देंगे तो कोई लिखने वाला नहीं। इस तरह से आज मीडिया भाई लोग ही स्वतंत्र नहीं है और उनके ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, तो क्या होता है? ये है, अब पता नहीं, अब हम तो अपनी आवाज देना बंद नहीं करेंगे, हम तो लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें कितनी हम पर अटैक करें, कितनी अत्याचार करें, हो सकता है आज मेरी बेटी पर धमकी दिए, अगर ये लड़ाई करना बंद ना करे तो उसमें क्या बेटी किससे भी ज्यादा भयानक तरीके करेंगे, तो हो सकता है मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा मेरे को लड़ाई छोड़ देना, नहीं छोड़ोगे, जो होगा हम सह लेंगे, हमारे साथ जो अटैक होगा वो भी सह लेंगे। तो इतना तो बच्चे भी साथ हैं। क्यों साथ हैं? क्योंकि उन्होंने 2011 से लेके अब तक देख रहे अपने पिता को उस तड़पते हुए जिंदगी इस तरह मरते थे। जब मेरे पति खत्म हुए तो मैं 2 घंटा के कोर्ट को मैंने आवेदन दिया था कि अंतिम समय मुझे मिलवाया जाए जज साहब कर, तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उसी केस में SR के जो मालिक है, SR के जो मतलब GM और जो वर्मा जी, उनको 3 महीने में जमानत दी। लेकिन कोर्ट को इतना दया नहीं है एक औरत को अपने पति का अंतिम समय का मिलने ना दिया जाए। ऐसा भी कैसे कानून बताए? मतलब ये है कि इसे साबित कर दिया हम आदिवासी, हम गरीब है, हमारे लिए कोई सरकार नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस वर्मा और BK लालों को 3 महीने में जमानत देते, हमको 2.5 साल रखते हैं। और उसके बावजूद भी जब मेरे पति के अंतिम समय तक का नहीं, जब हमने लिखा चिट्ठी बाहर लाए तो फिर मेरे को 10 दिन के बाद कोर्ट बोलती है कि अब आके अपने परिवार से मिलो। तो मैं बोली मैं क्या मिलूंगी? ये है हमारे साथ। जब मुझे प्रताड़ना होने से पहले पुलिस जो कोर्ट में ले गई और जिस मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के लिए कस्टडी में दिया, उस मजिस्ट्रेट ने मुझे देखा भी नहीं, जेल भेजा। और वो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ इतना यातना दिया गया है, मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं। और जब मेरे को कोर्ट में जब ले गए काफी दिन के बाद, तो मजिस्ट्रेट से मैंने बोला आप क्या न्याय करेंगे मैडम, आपको ये बताए जब आपके सामने जब 2 दिन के लिए रिमांड ले, उसके बाद आपने देखे बिना मुझे जेल क्यों भेजे? तो बोलती है कि नहीं मैं तो अपना बाबू को भेज दी थी। तो मुझे क्या पता मजिस्ट्रेट का बाबू है ये। इस तरह अन्याय होता है। इस तरह से एक न्यायालय भी कभी अनदेखा करती है तो हमारे साथ क्या होगा? और जो लोग इतने सालों से जेलों में बंद है, मैं 8-8, 9-9, 10-10 साल से, जो 3 महीना 4 महीना 8 महीना शादी होकर तो उनको उठा के लाते हैं और उसके बाद 10 साल रखते हैं, तब तक उनके पति शादी कर लेते हैं, तो उस महिलाओं का क्या होगा? कैसे जिंदगी जिए? ये है स्थिति। अगर इसके लिए हम लड़ रहे हैं तो सोनी सोनी नक्सलाइट है, देशद्रोही है, फिर सोनी सोनी के ऊपर कुछ भी अटैक करो, उसके ऊपर गुप्तांगों में पत्र डालो, करंट दो, उनको निवस्त्र करो, बस चल रहा है। ये है वहाँ का। आपको जो तेजाब से हमला हुआ है उसके पीछे क्या कारण है? जी आपके ऊपर जो हमला हुआ था, ये तेजाब का इसी है ना? हाँ, तेजाब से जो हमला हुआ था उसके पीछे क्या रीजन है? तो वही तो मैं अभी बताई ना, माडूम में जो हुआ था, माडूम के लिए DGP के पास गई, DGP के पास में मैंने सवाल किया था, तो DGP ने तुरंत एक्शन लेके बस्तर में भी गए और वो सब अपने अधिकारियों को बोला होगा कि ये क्या है, तो ये लोग मुझे जवाब देने के बाद ये अटैक करके मुझ पे ऐसा किए। लेकिन SP का कहना है हाँ, कि पब्लिसिटी
के लिए उसने ऐसा किया है? अगर ऐसा तो सबूत दे, वो करे। अगर एक बताइए, एक औरत ये बताइए, अगर मेरे को अपना नाम चाहिए तो मैं अपने ऊपर अटैक करूँ। अब यही नहीं, जब जेल जाने से पहले भी मेरे को करंट शॉर्ट से लिख दिया गया, मेरे गुप्तांगों में पत्र डाले, वो भी क्या मुझे नाम चाहिए? मैं तो एक सीधी सादी टीचर थी, फिर मुझे क्यों लाया गया? कोई भी व्यक्ति अपने नाम के लिए क्या, मैं नाम की भूखी हूँ क्या? मैं वहाँ की लड़ाई लड़ रही हूँ तो इसलिए मुझसे ऐसा किया। वो तो कुछ भी बोलेगी पुलिस, ठीक है, अगर ऐसा बोलती है तो आप सबूत मांगिए। Welcome to ask any questions. आप जो भी पूछते पूछ सकते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से भी आप जुड़ी हो, इसलिए हो सकता है आपके ऊपर राजनीतिक मामला हो, ऐसा भी है क्या? जी नहीं, जब मेरा अटैक हुआ साफ साफ कहा गया है कि आईजी के खिलाफ शिकायत करना बंद करो और मालूम का मुद्दा को ये उठाना बंद करो, ये बात है। ये कोई राजनीति के रूप में पार्टी की नेता होने के नाते ये अटैक नहीं हुआ। ये अटैक इसलिए हुआ कि वहाँ होने वाले हर अत्याचारों के लिए मैंने आवाज उठा दी। जो उसी रात लीगल ग्रुप को क्यों भगा दिया? लीगल ग्रुप ने क्या किया? माननीय सुब्रमण्यम को क्या क्यों भगाया बताइए? और उसके बाद सोनी के ऊपर अटैक क्यों किया गया? ये भी तो बहुत से आप लोग को सोचने की जरूरत है भाई। 4 पत्रकार अंदर उनके नाम बताइए। हमके नाम तो प्रेस में बताइए जी, जो पत्रकार जेल में है, सोमारू नाग है, प्रभात सिंह है, दीपक जायसवाल है, अशोक मुसिया। अखबार वगैरह नाम मालूम है? कौन सी न्यूज़पेपर के हैं? प्रभात पत्रिका मतलब इसमें चलाते थे, और उतना तो नहीं पवित्र जानती कि पत्रकार है। सॉरी जी, आप बोल रही हैं, आपका आरोप है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है किसी भी रूप से आपको सपोर्ट नहीं करती। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है या पुलिस की जो भी अभियान चल रहे हैं छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट को खत्म करने के लिए किया। आप आरोप लगा रही हैं कि नक्सलाइट से लड़ाई नहीं है बल्कि आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप आवाज़ उठाती हैं तो आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तरह तरह से। जो आपके साथ खड़े हैं या आपके बारे में जो भी चीज़ें छापी जाती है बाद में छपते उन्हें अंदर कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँची? उस पर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा मोदी जी ने दिया था, तो आप अपनी बात को लेकर के वहाँ तक पहुँची हैं क्या? अच्छा, आपको वहाँ जाना चाहिए ना, आपके साथ जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो आप क्यों नहीं जाते? एक चीज़ बता दूँ आपको, पहले की जो वो प्रश्न पूछ रहे थे चारों जर्नलिस्ट कहाँ काम कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। आप आराम से हम बता सकते हैं आप कौन कौन से कंपनी में, कौन कौन से पत्रकार पेपर में काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी तक जैसे उसने कहा एमनेस्टी के रिपोर्ट जो अभी निकला है वो दिल्ली में निकला है, जिसमें खास तौर पे जो जर्नलिस्ट को हुआ है डिटेल्स में लिखा है, जो पत्रकार को हुआ है, जो लॉयर्स को हुआ है। ये रिपोर्ट अभी सोमवार, अभी 4 दिन पहले दिल्ली में रिलीज हुई है। ये वेबसाइट पे मिलेगी, इसका कॉपी अगर आप चाहते हैं वो आपको ईमेल कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल दिया है पत्रकारों पे क्या नोटिस है, क्या चार्जेस है, क्या कर रहे थे और कैसे वो क्या चार्जेस थे, वो जेल में आप समझ सकते हैं पत्रकार को। छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, इसका मतलब वो सिक्योरिटी ऑफ छत्तीसगढ़ का थ्रेट थे। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वो सबसे बड़ी चार्ज है ये पत्रकारों के ऊपर, और वो चार्ज नॉन बेलेबल है। अगर वो चार्ज एस्टैब्लिश हो तो वो जेल में रहेगा पूरी लाइफ। तो ऐसे भयंकर फजूल चार्जेस आपके पत्रकार भाइयों के पास, लॉयर लोग जो इनकी सेवा कर रहे हैं, जो उनकी लीगल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। ये सब माओवादी है, ये सब लोग माओवादी है। आपके पत्रकार माओवादी है, आपके लॉयर लोग माओवादी है। ये कौन है? एक तो ये है, और दूसरी तरफ आप ये समझ के चलिए कि जो स्टोरी कह रही है कि ये आदिवासी की लड़ाई है, खास लड़ाई है। आदिवासी, कितने आदिवासी माओवादी के साथ है? 5%, 10%। बाकी अपने गांव में कोशिश कर रहे हैं जीने का, एग्जिस्टिंग। सरकार माओवादी के नाम से अटैक हो रहा है सबके ऊपर।
90% एग्जैक्ट फिगर्स नहीं कह सकते, ह्यूज मेजॉरिटी नक्सल नहीं है, सिंपल आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। माओवादी कितने मर रहे हैं, थोड़े बहुत बता रहे हैं एनकाउंटर में, और वो कह रही है कि 90% वो भी ना माओवादी नहीं है और सरेंडर करवा रहे हैं। इतनी जल्दी आराम से कौन माओवादी सरेंडर करता है? 90% ऑफ सरेंडर, और ये 2-3 रिपोर्ट आप मैं भेज सकता हूं, वो नक्सलाइट सबूत ही नहीं है कि वो नक्सलाइट है। जैसे उन्होंने कहा कि एक 7 बच्चे के पिता को राशन कार्ड है, सभी प्रूफ है, उसको मार दिया एनकाउंटर में। पूरे गांव में मालूम है उनको कि कोई माओवादी नहीं है। तो आदिवासी जो 90-95% माओवादी में नहीं है, उनके ऊपर अटैक है। ये स्टेट का क्या कोशिश है कि नहीं, ये लड़ाई माओवादी के साथ है। हाँ, माओवादी है, माओवादी हथियार उठाते हैं, माओवादी खतरनाक है, लेकिन 95-90% कम से कम आदिवासी लोग माओवादी नहीं हैं, ये आप मान लीजिए। मतलब सरकार जो है व्यापारियों को खुश करने के लिए आदिवासी को हटाना चाहिए, जैसा कि मैं या यही हम कह रहे हैं कि सरकार जो है जो खनिज संपदा है वहाँ, वो खनिज संपदा को कब्जा करने के लिए व्यापारियों को देने के लिए सरकार आदिवासी को जगह से हटाना चाहती है। वही तो मैंने पहले कहा है ना कि ये जो आखिर जमीन किन के लिए खाली है, उन्हीं के लिए। मगर छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है और उन्होंने जो वहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया, जैसे आपने लिखा छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ते दमन अत्याचार का विवरण, आप ये विवरण दे रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये कहना है कि वहाँ के जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या जो भी आदिवासी हैं वो माओवादियों से इन्वॉल्व हैं और वो माओवादियों को और नक्सलियों को एक तरह से सपोर्ट करते हैं और उसी सपोर्ट के वजह से वो पुलिस के चंगुल से बचते हैं, पुलिस की पकड़ में आने से बच जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? ये वहाँ के छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट का कहना है और पुलिस जो इसको टारगेट वहाँ पे कर रही है, उन आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है जिन आदिवासियों के ऊपर पुलिस को शक होता है कि ये नक्सलियों से मिले हुए हैं, ये नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, इसमें 2-3 बातें और है ना कि मान लीजिए ऐसा है कि आदिवासी माओवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं कर रहे हैं, जो भी उनकी नीति हो। तो अगर ऐसा है किसी भी देश के अंदर, अगर लोग देश के सरकार को समर्थन न दे के किसी अन्य उग्रवादी गुट को दे रहा है, तो ये सवाल नहीं बनता कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। तो यदि लोग माओवादियों को सपोर्ट दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार इस बात का जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आपने कौन सी गलती कर दी कि आदिवासी आपके साथ नहीं है आज? ये तो आपको भी पूछना चाहिए ना। एक तो ये बात है। दूसरी, मेरे किताब में एक मैंने परिशेष दिया था जिसमें मतलब कोई मनगढ़ंत तथ्य नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार के खुद के वेबसाइट से है कितने लाखों हजारों MOU साइन हुए हैं और बस्तर में, बीजापुर में। एक MOU का मैं आपको बताती हूँ, बड़े कंपनियां हैं उसमें, SR, टाटा, रियो टिंटो, डी बीयर्स इत्यादि कई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन छोटे छोटे कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो रूलिंग पार्टी के हैं वो भी हैं। एक मेजर अनिल सिंह हैं जिनके नाम से बीजापुर जिले में बहुत बड़ा इलाका उनको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए दिया गया और उसके अगेंस्ट जो स्टेटस रिपोर्ट का कॉलम है उसमें ये लिखा गया है कि अनिल सिंह जी ने अभी तक काम शुरू नहीं कर पाए क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है। तो इलाका अगर खाली कराया जा रहा है, वहाँ अगर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो मेजर अनिल सिंह के लिए नहीं किया जा रहा है। आदिवासी लोगों के साथ में बहुत सी संगठन जुड़ी हुई है, आपने कहा जी, महिला संघ जितने भी जुड़े हुए हैं, आज वो उनको साथ में लेके छत्तीसगढ़ के जो मिनिस्टर है उनके पास क्यों नहीं जा रहे ये लेके? सोनी जी खुद इसका जवाब देंगे, वो कई बार नहीं है यहाँ पे जो बोल रहे हैं अकेला जाना और एक साथ में जाना, हाँ। जाना वो फर्क है। आपका जो प्रश्न बहुत सही है। जबकि मालूम क्या नीलावाई में एनकाउंटर हुआ, नीलावाई के उस परिवार को लेके मुख्यमंत्री, अब मैं अपनी वहां तक का ना बता के मैं तो सीधा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ, उनको मैं ये बड़ी की बात मैं क्यों बोलूं, जिनके साथ प्रताड़ना होता वो भी बोले। तो मैं दंतेवाड़ा जिला में आए हुए थे, रमन
हमको थाने में अरेस्ट करके मुख्यमंत्री जब तक नहीं गए तब तक हमको थाने में अरेस्ट करके रखा गया। तो इसके ऐसा करने से कैसे होगा बता? जब हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं, वो मैं नहीं वो बताने जा रहे थे, और उसके बाद हमको थाने में कोलकोंडा थाने में रखा गया। जब मुख्यमंत्री जी वहां से रवाना हुए तब हमको छोड़ दिया गया। जब पूछ रहे हैं हमको क्यों पकड़े, हमारे भी अधिकार है, इनका अधिकार है मुख्यमंत्री। और अभी बीच में मेरे यही अटैक में जब हुआ तो मैं बोले, मेरे कई वहाँ के नेता लोग बोले कि आप बार बार चिल्लाते ये है, आप मुख्यमंत्री को कुछ बोलते हैं। मैंने स्पेशली उनको मेल भेजे, सब भेजे, और अंत में मुख्यमंत्री नहीं मिले। अब जब हमारे ही राज्य के मंत्री नहीं मिल रहे हैं, हम आदिवासियों की बात को नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं और से क्या उम्मीद रखे ये बताइए। हमने वही प्रयास किया, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ लड़ेंगे। हम संविधान, अगर इतना अत्याचार होने के बावजूद कहीं ना कहीं हम एक संविधान की बात कर, सिस्टम की बात कर, सब्र कर रहे हैं ना उम्मीद के रूप में, फिर भी हमको मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे तो क्या करें? तो वही है, हम लड़ते जा रहे हैं। ये हम प्रयास किए नहीं, अभी भी उसका अगर बोलेंगे मेरे पास सबूत है कि मैंने कौन से समय में मिलने की कोशिश किया, मुझे अरेस्ट किया गया, वो बेचारे गांव वाले को भी अरेस्ट किए और रखे रहे, नहीं मिलने देते हैं। हाँ, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछे कि आपने आंदोलन क्यों नहीं कर। एक बात बताइए, अगर वही बात ना मैं कल भी कुछ साथियों से अगर हम लोग हमारे जो जंगलों में रहने वाले भाई बहन है वो बगैर मतलब ऐसा नहीं शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते, एक बार उनकी बात तो सुने क्या चाहते हैं, उसकी एक बार के लिए शांति वार्ता का एक आंदोलन के रूप में आएंगे और बताएंगे हम किस चीज से परेशान है, सरकार हमको क्या मदद करना है, तो उसके लिए आने दीजिए। नहीं, अगर वहाँ 12,000 ऐसे आदिवासी लोग निकल गए तो इनकी 20,000 फोर्स वहाँ पहुंच के पूरा घेरा करके डंडों से मार के वापस जंगलों में भेज देती है। और हमारी आवाज को एक जंगल से एक मैदानी तक लाने कहाँ देते हैं। वो तो शुक्र है आप सब लोग की मेहरबानी है कि मेरा आप लोग इशू इतना उठाया और मैं जूझ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ, यहाँ से भी कई आवाज निकलती है, तो जिसको मैं नेतृत्व करती हूँ तो लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत आगे ले आते हैं। लेकिन वैसे और भी है लड़ने वाले, उनको यह जेल जाने की धमकी आ रही, जेल कौन जाना चाहे, हमको इसलिए आज डर नहीं, हमको जेल 10 बार भेजे तो 10 बार जाने को तैयार है। अगर हमको अगर गोली चला के हमको मौत के घाट उठे तो भी तैयार, हमको तैयार होकर निकल गए 2.5 साल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए हम जूझ रहे हैं। नहीं 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 वो नहीं कह रहे हो। एक बात बताइए, ये भी आपने अच्छा सवाल किया। ये तो मेरा व्यक्तिगत है, मैं आई हूँ, मैं अपनी बात को, मेरी बात तो पूरा देश सुन रहा है, सब जानते हैं, पर मैं चाहती हूँ बस्तर के साथ लोगों से जो अत्याचार हो रहा है उनको लेके मिलना। लेकिन जब अगर मैं चुपके से ला के मिला भी दूं ना, जब वापस जाएंगे ना उनके साथ क्या बुरा हाल होगा उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा। आपने सोनी शोरी के साथ क्यों गए, आपने शिकायत क्यों, ऐसा वहाँ प्रताड़ना हो रहा है तो बताइए। अगर हम बता के लाने की कोशिश करते हैं तो रोका जाता है, हम दोनों तरफ से परेशान, चुपके से भी ला सकते हैं तो उसके बाद जब वापस जाएंगे ना, मुझे नहीं उनके साथ प्रताड़ना, उनको परेशान, उनको जेल डाल दिया जाए, तो आप बताइए अब कैसे वहां तक। मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं बड़े मंत्री के पास जाऊँ, ये मेरे तो जो जीवन बर्बाद होना हो गया, जो लड़ना, लेकिन जिनको लेके लड़ना चाहिए, जिनके साथ हो रहा उनको बताना ज्यादा, पर उनको कैसे लाए। Actually, the Jagdalpur Legal Aid Group was working precisely on this. They were trying to document the numbers of the cases of people who were in jail, framed on sedition charges, and following up their cases. Soni's own cases. Soni had 7 cases on her. In 6, she has been acquitted. She has been acquitted. 1 is still pending, and most of these cases end in acquittal because there's hardly any evidence. Because this is exactly like it was in pre-independence times. If you just picked up somebody who was reading a pro-independence leaflet and you put them in jail under sedition charges, it's exactly the same mentality. That ultimately there's no evidence that hangs together. And is it possible then to go back to whatever little normalcy that we may have had before the case? Is it possible to go back to that, or do these cases remain repeating and Just repeat the last one. Cases keep repeating, For
some people yes, but for most people not. But like if you're stuck in 4 cases, I mean that takes you like something like 10 years to get out of it. That's a large chunk of your life gone. And the other part is that, as you were saying, the women who come out are in terrible condition. Because if they've been assaulted in the jail, once they come out, nobody wants it. The family doesn't want them back. That's what I was saying. If they have been tortured and sexually abused, that's what she's talking about, midway. Actually, No one will marry her. So she's like a recluse in life. She's left alone. Nobody wants her. So Soni herself has taken her on and is trying to rehab her, give her the confidence back, give her some training so that she can have gainful employment. So Soni is taking on herself to look after Hitme, for example. Look, Hitme is one example, but actually, tribal communities are not so stuck on chastity. So in some cases, people do go back home, and but marriage is difficult. Marriage and subsequent relationships are difficult. But some of them do manage to find some space at home, but then they're destroyed. They're destroyed from inside, so it's very difficult to build up your life again. But this is a universal story. It's more or less the same everywhere. There have been multiple complaints against BJP. I mean, there have been multiple personal complaints about his misdeeds or his lack, they were not according to the code of conduct of police official. Have you all attempted to file cases or register complaints against him? Several. This Kalluri, who is now IG of Bastar range, there was a case filed against him in, I think it was 2004, when John Reyes was leading that Rozgar Adhikar Yatra. And this was a bunch of young people, students, journalists, and all kinds of activists who were going across the country demanding this Right to Employment Act, Right to Work Act. I mean, eventually it kind of coalesced into that. When they were passing through Chhattisgarh and they were going from Chhattisgarh into Jharkhand, they were attacked, and this chap at that time was the DGP of, not the DGP, the DIG of Sarguja. And he had attacked them, and John Reyes personally, I mean, he pulled him by the hair and he kind of hit several people. Many people were injured, so that case is still pending. But cases are in this country, I mean, maybe there has been a hearing or two, and I don't think Kalluri has attended any of them. So it's somewhere in limbo. At some point there will be some decision. There have been cases against him, not too many, there should be more. But you can't hope for very quick redressal that way. Also, there are cases which are being investigated. Who investigates cases? An SIT. Who's in the SIT? 3 policemen. It's police officers who are. Police officers or police officers. The SIT. So what are you going to get out of that? So recently we've had recently we had an NHRC team go to investigate after the attack and stuff. Rather than ask Linga, for example, he was being accused by the SIT of colluding with Soni's brother-in-law and conspiring to attack Soni. Rather than listen to his views and tell his version of what he thinks happened, they said, how do we know you didn't do it? This is the NHRC team. The NHRC team consisted of 1 retired IG police, 2 current police officers, and 2 law officers, supposedly law officers, from the NHRC. That's it. So you can imagine the caliber of the NHRC team. I'm sorry to say this. I mean, really, as a civil activist who's concerned about human rights, the reality is none of these investigations, even if they are conducted, which is rare, like in Louis' case it probably hasn't happened, the SIT is meaningless, the NHRC is either meaningless or toothless. So nothing that they, even if they recommend something, nothing happens. So bottom line is the police or the security forces or those who are committing the atrocities, the guys who are supposed to maintain law are the lawbreakers in a big way. They are completely exempt from any punishment of any kind. So in fact, going one step further, we were thinking of AFSPA as we know exists in certain countries, in certain states like Manipur, Kashmir, etc. But there's no AFSPA required in Chhattisgarh. Nothing happens to them anyway. So what is AFSPA? No army guy is convicted. One guy in 20 years has been court-martialed.
So whether it's AFSPA or no AFSPA, nothing really happens to these people committing these atrocities. That's a part of a system or justice system we have or lack. Right? Yeah. So there's a structural problem with the NHRC because the NHRC is staffed by policemen or policewomen. So it's the same cadre. I mean, there is this solidarity and fellow feeling and brotherhood of the clan. So they do not testify against each other. Ideally, NHRC should be an independent body and it should be, separately recruited out of the judiciary perhaps, retired judiciary perhaps. But very often, even the director is a retired judge often. But in the states, even that does not happen. There is also a state human rights commission, which in Chhattisgarh, which is headed by a retired DGP. Questions about you just asked Sony words to wrap up. आगे का क्या आपको लग रहा है कि आगे क्या करना चाहिए आपको? आगे भी यही इसी तरह हम लड़ते रहेंगे वहाँ के साथ जो हो रहा है, और हम अब कोशिश में है कि अब जो जिनका एनकाउंटर हो रहा है वो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, शिक्षा के नाम में भी कुछ नहीं, कई स्कूलें बंद हैं, तो दोबारा उस स्कूलों को किस तरह से हम फिर से खुलवाया जाए और कुछ संस्था वगैरह को उन अनाथ बच्चों के लिए फिर से हम कोई स्कूल खोलना चाहिए। और जो आदिवासी महिलाएं जो इतने सालों से बंद है, जिनका वो बिगड़ उनको फिर आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए हम एक संस्था खोलने की सोच रहे हैं कि जैसे इरमे जैसे लोग हैं, लक्के जैसे लोग हैं, जब ये से कई महिला हैं जो इतने साल से निकल तो गई, आज वो समाज हो या फिर शादी करना ये सब चीज से बहुत दूर हो चुके हैं, अब उनको दोबारा आत्मशक्ति की जरूरत है। हम चाहते हैं कि अगर इसको हम सब, मैं ही नहीं आप सब अगर इसके साथ ना दें तो किस ओर जाएंगे, एक हिंसात्मक की ओर। तो हमको एक हिंसा और क्योंकि इतना ज्यादा जुर्म सहे हैं, सताए हुए लोग हैं, कुछ तो माओवादी पर चले भी गए हैं, और हम नहीं चाहते कि इस तरह वो वहाँ जाए, क्योंकि अंतिम में उनके पास सोच यही आता है। तो हम उनको फिर से दोबारा आप सबके सहयोग से फिर से आत्मनिर्भर बनाया जाए, फिर से वो इस देश में हम सब के बीच में वो जिए, और जो थोड़ा बहुत जिंदगी जो बची है उसका प्रयास है। और जो वहाँ की लड़ाई है और जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और आप सबसे भी मेरी ये अपील है कि आप सब तो हम जेल से जब तक जेल गए, जेल से आए, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस्तर में रह के लड़ रहे हैं तो हम अकेला नहीं, आप सबका सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ये साथ हमेशा बने रहे, तो जिससे हम वहाँ पर कुछ इस तरह लड़ते रहें। हमारे लड़ने से कुछ अच्छा होता है और नहीं भी होता है, पर लड़ाई तो नहीं छोड़ेंगे। आप सब हमारे जब साथ हैं तो आप लोग यहाँ रह के भी बस्तर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और ऐसे ही बने रहें।